اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے اثرات اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی سیاسی منظرنامے پر بات کرنے کے لیے سینئر تجزیہ کار نسیم زہرا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ نسیم زہرا صاحبہ، فیصلے آپ نے دیکھے جس طرح عمران خان کی ضمانتیں منظور ہوئیں، اب اس کے اثرات کیا سامنے آئیں گے؟ جی، ابھی 2 کیسز اور کی تو ضمانتیں باقی ہیں جس پہ ابھی وہ ہیئرنگ ہو رہی ہے کورٹ میں۔ میرا خیال ہے اثرات اس کے سب سے پہلے تو یہ ہوں گے کہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان جب باہر نکلتے ہیں تو وہ ان کی اپنی کیا وہ لائن لیتے ہیں، کیا وہ زیادہ انگیج کرتے ہیں پولیٹیکلی، ذرا کام ڈاؤن ہوتے ہیں یا جارحانہ ان کی سیاست ہوتی ہے، وہ دیکھنا پڑے گا۔ کیا وہ جو کہہ رہے تھے کہ جی میں نکلوں گا اور میں جلد سے جلوس کروں گا، میرا خیال ہے جلد سے جلوس تو شاید فی الوقت رک جائیں، کیونکہ یہ جو ضمانتیں ہیں یہ میرا خیال ہے ناظرین کو یہ بتانا لازمی ہے کہ یہ میرا خیال ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو خالی اسلام آباد کی حدود تک ہی ان کا نفاذ ہے ضمانتوں کا۔ اور میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو ضمانتیں ملی ہیں وہ اسلام آباد کی حدود تک ان کا نفاذ ہے، اور وہ ان کیسز پر ہے جو کہ اسلام آباد میں کے دائرہ کار میں وہ رجسٹر ہوئے ہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اچھا یہ دیکھیے ابھی ایس بی سی کو یہ بھی حکم آ گیا کہ اسلام آباد کو کہ 10 روز تک عمران خان کو ملک بھر میں کسی بھی مقدمے پر حفاظتی ضمانت مل گئی، یعنی کہ ان کو نہیں اب گرفتار کیا جا سکتا، کیونکہ پہلا ایک سوال اٹھا تھا کہ اگر مثلا پنجاب کی پولیس یہاں آئے اور ایڈمنسٹریٹولی سب کلیئرنس اس کو مل جائے تو پنجاب کی پولیس جو کیس اگر پنجاب میں دائر ہے اس پر ان کو کر سکتی ہے گرفتار، کیونکہ یاد رہے ابھی میرا خیال ہے کہ ٹوٹل عمران خان نے شاید 6 یا کیسز پہ یا 7 پہ ان کو ضمانت ملی ہے، لیکن ان کے خلاف 140 کیسز ہیں۔ تو یہ ابھی ہمیں نہیں گارنٹی کہ یہ ان کو نہیں اریسٹ کیا جا سکتا، ہو بھی سکتا ہے کہ اریسٹ کر لیں، کیونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 140 کیسز ان پر لگے ہیں، اور یہ بھی کہ ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ سپریم کے کورٹ روم کے باہر جو اس وقت پولیس بھی ہے اور رینجرز بھی ہیں، اور یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ صبح سے اب تک جو رینجرز اور پولیس کی جو تعداد تھی اور جس طریقے سے وہ وہاں موجود تھے اسی طریقے سے موجود ہیں، تو یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید ان کو پھر بھی کسی نہ کسی کیس میں گرفتار کر لیا جائے۔ ایک تو یہ، اور ایک اور جو بڑی دلچسپ اور اہم بات ہے جو جسٹس گل حسن نے کہی اپنے ریمارکس میں، انہوں نے یہ کہا کہ جب عمران خان کو مئی 9 کو ان کو گرفتار کیا گیا تھا رینجرز نے آ کے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی ویڈیو غائب ہو گئی ہے۔ میرا خیال ہے یہ اہم بات ہے، انہوں نے کہا جو اس کی ریکارڈنگ ویڈیو ریکارڈنگ آپ کو معلوم ہے ہوتی ہے، انہوں نے کہا وہ ویڈیو ریکارڈنگ غائب ہو گئی ہے اور اس پر ہم اب اس کی انکوائری کریں گے۔ تو یہ بہرحال جہاں تک سوال ہے حکومت کا، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایک طرف حکومت نے بار بار کہا ہے، ایک پی ڈی ایم کے ممبر نے یہ کہا، لیڈر نے، کہ جی یہ جو دہشت گردی ہوئی ہے اور جو اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، جو مختلف کور کمانڈرز کے ریزیڈنسز پہ اٹیک کیا، اور بالکل یہ اس کی سخت سے سخت کی جانی چاہیے کنڈمنیشن، لیکن اس کے ساتھ یہ کہا کہ یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں۔ کچھ نے تو یہ بھی کہا کہ پارٹی جو ہے وہ دہشت گردوں کی پارٹی ہے۔ تو ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں حکومت کی اور پی ڈی ایم کے جو ممبرز ہیں ان کی یہ سیاسی حکمت عملی ہے، اور ان کا خیال ہے کہ یہ لیگلی بھی یہ ہے، مورلی بھی یہ ہے کہ جی پارٹی جو ہے اور عمران خان کو گرفتار ہونا چاہیے اور ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے، جو کہ تمام اٹیکس ہوئے کور کمانڈر ریزیڈنسز میں تو ان پر ذمہ داری ہونی چاہیے، تو اس میں ان کی گرفتاری لازمی ہے۔ اور پارٹی کو، جیسے حالانکہ بلاول بھٹو نے بڑی کلیئرلی کہا کہ کیا یہ پارٹی کو دہشت گرد، ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کی پارٹی پر کوئی اس طرح کو بین وین کیا جائے، لیکن ظاہر ہے ایک پریشر حکومت کی طرف سے یہ ہے، اور ابھی آپ نے دیکھی جو کابینہ کی میٹنگ ہوئی ہے اور اس کا جو سامنے آیا ہے اعلامیہ، اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ان کے خلاف سخت سے سخت اقدامات کیے جائیں۔ اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کورٹ ہے،
कोर्ट जो हैं वो जमानत दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो जमानत थी वो बड़ी एक स्पेसिफिक बेसिस पे थी कि जी कोर्ट रूम से, कोर्ट प्रेमिसेस से आप अरेस्ट नहीं कर सकते, और इसी तरह की जो जमानत थी हमने देखा कि 2012 में यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे को, मूसा गिलानी को दी थी जस्टिस नसीरुल मुल्क ने, क्योंकि उनके बेटे को गिरफ्तार किया था एंटी नार्कोटिक फोर्स ने सुप्रीम कोर्ट के गेट से। तो मतलब वो वजह लेके उन्होंने, उसी तरह की वजह लेके कि भाई कोर्ट से नहीं उनको गिरफ्तार किया जाता तो उनको छोड़ा था। अच्छा, उसके बाद आज हम सुबह से सुन रहे हैं जो तमाम कोर्ट हियरिंग्स हो रही हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जस्टिस गुल हसन, फिर उनके साथ उनके ऑनरेबल जज मेंबर थी, वहाँ तमाम जो बातें हो रही हैं, मसलन अगर आप ये ले इनका मलिक रियाज वाला केस और अल कादिर ट्रस्ट का केस, उसमें ये पूछा गया, जस्टिस गुल हसन ने पूछा जी आप बताएं कि आपने इनकी कितनी पूछगिछ की 48 घंटों में, नैब से पूछा। उन्होंने कहा जी आपने इंक्वायरी कितनी की, इनसे दस्तावेजात कितने साइन करवाए, ये किया, और जब उनको जवाब मिला नेगेटिव में कि इमरान खान से कुछ नहीं पूछा गया नैब की तरफ से, तो उन्होंने 2 हफ्ते की उनको जमानत दे दी। तो कहने का मकसद ये है कि अब वो जैसे ये भी कहा उन्होंने कि जी इस तरह के जो केसेस हैं वो सियासी वजूहात की बिना पर बनते हैं। फिर इनके जो लॉयर की प्ली थी वो ये थी कि ये 140 केसेस ये तो पॉलिटिकली हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि जजेस जो हैं, बेंच मुख्तलिफ थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, एक बेंच नहीं था, 2 मुख्तलिफ बेंच थे। एक में जस्टिस जहांगीरी थे जिन्होंने ये 4 जो केसेस हैं लाहौर से जिनका ताल्लुक है और उसमें उनको दी है बेल बिफोर अरेस्ट, जमानत दी है 10 दिनों की। तो ये इमरान खान जो लीगल साइड है उस पर उनको बहुत कामयाबी हुई है ना उनके लिए आज, अगर ये तमाम केसेस देखें कल रात से अब तक। और लेकिन हम देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिवली हुकूमत जो है उसका एक मुख्तलिफ व्यू है। और दूसरी तरफ आप देखें ISPR की भी एक जो आई, यानी कि सही तौर पे गुस्सा चढ़ा हुआ है कि भाई ये किस तरह से कोर कमांडर्स रेजिडेंस में इस तरह से अटैक हुए, और फिर वही बात है कि उसकी जितनी मजम्मत करे कम है। तो हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ट्रैक्स हैं, लेकिन आखिर में जब जाते हैं आप उसमें यानी कि अदालत में, तो फिर अदलिया ने तो वो देखना है कि क्या चीज बाय लॉ पॉसिबल है क्या नहीं पॉसिबल है। तो अब हम ये तो नहीं कह सकते कि सारे के सारे जजेस प्रो इमरान खान है। जैसे गुल हसन जिनके वालिद PMLN में थे और जो उनके साथ कॉलीग जज है, फिर जस्टिस जहांगीर। तो ये एक बड़ी दिलचस्प चीज है कि अब यकीनी तौर पे अब देखना ये है कि इमरान खान वहां से निकलते हैं जब, तो क्या उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि बता रहे हैं सब लोग कि जी फोर्सेस उतनी बाहर हैं जितनी दिन के शुरू में थी। तो ये भी जरूर खदशा है। और मैंने जैसे आपसे कहा कि 6 या 7 में जमानत हुई है, लेकिन अभी तो 130 या पता नहीं कितने केसेस हैं जिसमें जमानत नहीं हुई। और किसी, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज है ना। और ये राना सनाउल्लाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर साहब उन्होंने कहा चले हम किसी ना किसी में तो इनको पकड़ ही लेंगे। और अभी मेरा ख्याल है इमरान खान साहब जब रोस्टम पे गए हैं तो उन्होंने ये भी कहा कि जी उन्होंने कहा है कि मुझे पकड़ लेंगे। तो मेरा ख्याल है उसी जुमरे में जस्टिस जहांगीरी साहब ने कहा कि जी इनको किसी सूरत में मुल्क में कहीं भी ना पकड़ा जाए, जो कि समझ से जरा बाहर है, क्योंकि उन्होंने कहा कि इमरान को मुल्क भर में पीर तक कहीं से ना पकड़ा जाए। अब ये क्या मुमकिन है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि नॉर्मली ज्यूरिसडिक्शन जो होती है वो कोर्ट की अपने ही प्रोविंस में या अपने इलाके में, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, यू नो उसकी ज्यूरिसडिक्शन इस्लामाबाद है। तो देखिए आगे क्या होता है। ठीक है नसीम ज़हरा साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बुखारी साहब, जिस तरह PTM का इजलास जारी है और वज़ीर आज़म ने भी हंगामी इजलास तलब किया है, आप क्या समझते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों के बाद अब कोई अहम फैसला कर लिया जाएगा? देखिए, पहले तो दाद दिए बगैर मैं नहीं रह सकता। इस्लामाबाद को हाई कोर्ट के जो फैसले हैं उनके सदके जाएं। पूरी एक नई तारीख रकम कर दी है उन्होंने कि अभी जो मुकदमात होने हैं, जो जुर्म अभी सरजद होगा उसमें भी जमानत है। आप नहीं पूछ सकते उनको अगले 10 दिन तक जहां मर्जी मुल्क में वो जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन की औकात तो बिल्कुल तय है अगर आप नक्शे पर देखें, लेकिन वो जमानतें बख्श रहे हैं पूरे मुल्क की। क्या कहने हैं इस इंसाफ के, क्या बोल पाला हो रहा है इंसाफ का। मैं कहता हूँ ऐसी तारीखें लिखी जाएंगी
इस इंसाफ के ऊपर, चाहे वो एक बेंच हो चाहे दूसरा बेंच हो। जो लाडला है उसको हाथ नहीं लगा सकता कोई। दे विल मेक श्योर कि उसकी तरफ कोई देखे भी ना, वो चाहे कत्ल करें, वो चाहे जितना बड़ा घिनौना जुर्म करे किसी सड़क के ऊपर, आने वाले वक्त में भी उसमें भी जमानत है, आप हाथ नहीं लगा सकते उनको। ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान की प्रेजेंट जुडिशरी ने इंसाफ और इंसाफ के तकाजों का जो बुरकत निकाला है, जो बर्बादी की है, जो तबाही की है, इसका पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में, क्या दुनिया की कहीं हिस्ट्री में इसकी कोई मिसाल नहीं है। तो इसके बाद मैं क्या अर्ज करूं, मुझे बताइए, कोई बात रह जाती है कमेंट करने वाली? जब एक आदमी को ऐसे जराइम में भी जमानत मिल जाती है जो अभी उसने करने हैं या अभी नहीं किए हैं उसने, तो अल्लाह की शान है। हम ये देखने के लिए बचे हुए थे मुल्क में ये हाल हो जाएगा इंसाफ का। जो कहा जाता था, जो खान साहब खुद फरमाते थे कि दो तरह का इंसाफ नहीं होना चाहिए, छोटे के लिए कुछ और, बड़े के लिए कुछ और। तो खान साहब आईना देखिए और बताएं मुझे ये क्या हो रहा है, ये क्या है? ये कानून सबके लिए एक है? आप तोड़ें, चाहे कोर कमांडर का घर उजाड़ दें, आप चाहे कायदे आजम कहें उसको, चाहे जो मर्जी कहें, आप GHQ में घुस जाएं, कौन है आपको पूछने वाला? और अभी तो आपने धमकी दी अदालत के अंदर बैठ के कि दोबारा मुझे हाथ लगाया तो सिर्फ बदतर होगा। तो ये है जनाब हमारा इंसाफ। कुर्बान जाए इस इंसाफ के और इस इंसाफ करने वालों के। मैं तो सलाम ही पेश कर सकता हूँ, नहीं बड़ा नाचीज बंदा हूँ मैं, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसने इंसाफ का खिलवाड़ किया है उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, कोई दो राय नहीं इसके बारे में। माजी में भी हमने देखा जिन्होंने भुट्टो को फांसी लगाया, उन जजों का हाल भी हमने देखा, जिन्होंने बाद में लोगों को बिला वजह, बगैर किसी जवाब के, बगैर किसी प्रे के नाअहल करार दिया, हमने उनका हशर भी देखा। तो इनका भी देख लेंगे, हशर तो नजर आएगा, ये तो कभी हो नहीं सकता। जी ठीक है। नसीम ज़हरा साहिबा, जिस तरह हुकूमती इजलासों में पार्टी पर पाबंदी लगाने की बात की जाती है, आप समझती हैं कि इतना आसान होता है किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना? और क्या हुकूमत ये भी अब फैसला कर सकती है और इसके असरात क्या हो सकते हैं? नसीम ज़हरा साहिबा से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। बुखारी साहब, आप कहिएगा इस मुतालिक, क्या इमरजेंसी लगाई जा सकती है या PTI पर पाबंदी लगाई जा सकती है? क्या हुकूमती इजलासों में ये भी फैसला हो सकता है? देखिए, ये सब कुछ मुमकिन है, ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये उसी मुआशरे में हो सकता है जहां अदलिया जो है वो कानून के और आईनी तकाजे पूरे करने के लिए आमादा हो। आप आज पाबंदी लगाएं, सुबह वो उड़ा देंगे उसको, फिर क्या करेंगे आप? तो ये तो एक अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है। पाकिस्तान की जो वैसे सियासी सूरत हाल है वो तो अपनी जगह है, जो मंजरनामा इस वक्त हम देख रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, जो भी इकदाम इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट करेगी उसको उड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट घुटने टेक के बैठे हुए हैं कि बस उनके बारे में, लाडले के बारे में आप कोई चीज लेके आए, हम उसको यकजुम्बश कलम उड़ा के रख देंगे। ये इंसाफ हो रहा है तो फिर जो मर्जी करें, खान साहब बादशाह हैं। अच्छा बुखारी साहब, ये बताइएगा, रहनुमाई फरमाइएगा कि इस पर अमल दरामद 30 दिन के बाद होता है या उससे पहले हो जाता है? कोर्ट के इख्तियारात तो महदूद हो जाते हैं इमरजेंसी लगाने में। देखिए, जब इमरजेंसी लगती है तो यह फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होती है, उसमें कोई मुद्दत शुद्दत नहीं दी जाती। और अगर इस मुल्क में इमरजेंसी लगी, इस मुल्क में मार्शल लगा, द सिंगल पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल एंड हिज नेम इज इमरान खान। वो मुल्क को उस तरफ लेके जा रहे हैं जहां पर इसके माशरे की तबाही हो, जहां इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नेशंस में हमें लुक डाउन किया जाए, हमारे ऊपर कहा जाए कि किस किस्म की ये न्यूक्लियर पावर है, लानत है। ऐसे मुल्क पर लानत भेजेंगे लोग हम पर, जहां इंसाफ के तकाजों को यूं पूरा किया जाता हो। ठीक है, सलीम बुखारी साहब बहुत शुक्रिया। नसीम ज़हरा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, आपका भी बहुत शुक्रिया।